everyone. So now see, Yes. before going to discuss about this question, in the last session, I have already discussed what is basically what is the meaning of linearly dependent and independent. बताया था ना सभी को? मुझे बताओ. सभी को बताया था what is meaning Yes. of linearly dependent. I think everyone knows what is linearly dependent, and second is what is linearly independent. देखो, अभी जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, so I will tell you, you can find out linearly dependent, independent, not only by single method. There are several methods. First, I just in a short way I just write in this corner side. There are several methods to find out linearly dependent and independent. Once we will discuss the next topic to next topic to next topic, we learn these things one by one, right? पहले देखो, पहला मेथड है बेसिक मेथड, जो आपको डिफिनीशन से बताऊंगा. बी डॉट एस मीन्स बेसिक, बी एम लिख देता हूँ, बेसिक मेथड, कि हम उसका लीनियर कम्बिनेशन करेंगे एंड बाई दैट वी कैन चेक whether it is linearly dependent or. So this is the फर्स्ट मेथड दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस, द बेसिक मेथड है, और एक बार रिकैप करूंगा. सेकेंड है, आप डिटर्मिनेंट निकाल के भी इसको, जो भी आपको सेट दिया रहे उसको मैट्रिक्स फॉर्म में करके उसका डिटर्मिनेंट निकाल के भी चेक कर सकते हो कि जो गिवन सेट है तो वो कैसे होगा. वो सारी चीज़ें मैं वन बाई वन आपको बताऊंगा कि द गिवन सेट आर, यू कैन से दैट द गिवन वेक्टर्स आर basically dependent or independent, you can find out by the determinant, right? This is the first method, basically the basic method, where you just do the linear combination, and by the linear combination अगर उसके सारे कोफिशिएंट जीरो हो जाते हैं, you can say that it is linearly independent. अगर सारे कोफिशिएंट जीरो नहीं होते हैं तो क्या बोलेंगे? लीनियरली डिपेंडेंट. एटलीस्ट कम से कम एक ऐसा कोफिशिएंट हो जो नॉन जीरो. सेकेंड मेथड इज डिटर्मिनेंट मेथड. थर्ड मेथड इज, एनीबडी टेल मी, रॉस्कियन से भी हम निकाल के बता सकते हैं. कोई भी अगर दिया हुआ है वेक्टर तो उसका रॉस्कियन भी निकाल के हम बता सकते हैं कि लीनियरली डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, उसका डायमेंशन क्या है. सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको समझनी है, जाननी है. देर आर नॉट ए सिंगल मेथड दैट आई विल टेल यू. आई विल टेल यू more than one method how you can check it. Just wait. Just you people just wait 1 minute, right? Right, I think it is clear. So there are several methods that I will discuss one by one, right? So Roskian, any other method, anybody tell me? उसका पहले आपको बताया बेसिक मेथड, डिटर्मिनेंट निकाल के रॉस्कियन भी निकाल सकते हो, और क्या निकाल सकते हो? रैंक भी निकाल के बता सकते हो. Yes, echelon form, or you can say that by finding the rank you can also tell whether it is linearly dependent or independent. So there are not a single method, there are several method, and one by one I will discuss. So first method is the linearly, whether it is linearly dependent or not. So let's suppose we have a set of vector. B is the set of vectors alpha 1, alpha 2, alpha 3, dot 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 alpha n. This is the basic method. So linearly dependent means we just do the linear combination. इसका linear combination आप करेंगे.
A1 अल्फा 1 इस वेक्टर का इस स्केलर के साथ A1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस A3 अल्फा 3 प्लस डॉट 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 AN अल्फा n इज इक्वल टू 0, राइट? इट इज क्लियर, इट इज क्लियर। अब क्या करेंगे, इफ एट लीस्ट वन AI इज नॉट जीरो, अगर कम से कम एक ऐसा स्केलर नॉन जीरो हो तो इसको क्या बोलेंगे, एटलीस्ट, कम से कम इट इज लीनियरली डिपेंडेंट, राइट? राइट, Sir, at least one of AI is equal to 0. यस, एटलीस्ट वन ऑफ द AI, कोई भी A1 A2 A3 कोई भी, एटलीस्ट वन, एक से ज्यादा Y नहीं। equal to 0, sir, not. हाँ Sir, सॉरी, no, equal to 0. just at least one of the AI is non-zero, right? Okay, sir, okay. Who Sujata, you are telling? Yes, sir. Yes, sir. What you are doing, so you also Raj Lakshmi, sorry, I have not added you in the group, right? Now I have added you, right? Raj Lakshmi, I think you have joined the session, na? कहाँ चली गई राज लक्ष्मी? someone has, okay, no problem. So Sujata, let clear, it is clear na Sujata? Now second set B, Yes, sir. the same set, just see, I will also give you the example. if all the coefficient, सारे कोफिशिएंट जीरो हो जाए, अगर आप लीनियर कम्बिनेशन कर लीजिए, ये देखो बेसिक मेथड है, बट डोंट ट्राई टू यूज दिस मेथड इन द एग्जाम, वाई? बिकॉज दिस इज द लेंदी प्रोसेस टू चेक बाय दिस मेथड। सो आप इसका लीनियर कम्बिनेशन कर लो, जितने वेक्टर हैं अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, जितने भी सेट ऑफ वेक्टर्स हैं उनका आप लीनियर कम्बिनेशन कर लीजिए, राइट? और उसको जीरो के बराबर इक्वेट कर लीजिए, राइट? इफ ऑल AI इज जीरो, सारे AI जीरो हो जाए, जितने भी कोफिशिएंट है सब जीरो हो, राइट? राइट, देन आप इसको जीरो करोगे कब? इफ ऑल द AI विल बी जीरो, अगर सारे AI जीरो हो जाते हैं, देखो इसमें क्या है, कम से कम एक AI नॉन जीरो हो, राइट? तब हम बोलेंगे लीनियरली डिपेंडेंट है, राइट? इट इज क्लियर। और अगर सारे AI, इफ ऑल AI बिकम जीरो, राइट, ऐसा लीनियर कम्बिनेशन करो जो जीरो के बराबर आवे, और ये कंडीशन तभी सेटिस्फाई हो, दिस इक्वेशन नंबर 2 इज सेटिस्फाई ओनली if all the AI become zero, right? In that case we can say that it is linearly independent, right? अगर एक भी नॉन जीरो आ गया कोफिशिएंट, अगर ये देखो इक्वेशन नंबर 1 इज सेटिस्फाइड, राइट, एंड इफ एट लीस्ट one of the AI is non-zero, we can say that it is linearly dependent. Just try to understand, you people will solve these question 1 2 3 4, all these question by all these method. Try to understand, I just tell you one by one all these method. मैंने आपको बताया एक मेथड नहीं, मैं आपको एक प्रॉब्लम को 4 से 5 मेथड बताऊंगा सॉल्व करना, इट इज़ क्लियर? और सबने ऐसा नहीं है, बहुत बार आपने सॉल्व भी किया होगा, बट इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप एग्ज़ाम में जाएं तो इस तरीके से सोच सकें। अब पहला एग्जाम्पल, पहला तरीका देखो, एग्जाम फर्स्ट वी जस्ट सी द एग्जाम्पल, अगेन आई जस्ट रिकैप दीज थिंग्स एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड विद दिस डिपेंडेंट एंड independent. I will discuss 2 to 3 more important topic that are related to each other. पहला देखो बेसिस है, लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है, ऑल दीज आर रिलेटेड, डायमेंशन, राइट? डायमेंशन, बेसिस, linearly dependent independent, dimension, all these topic are related to each other. Try to understand and 100% sure that you will get one question in CSIR every time from these topic, right? अगर बेसिस से नहीं पूछा तो डायमेंशन से पूछ लेगा, डायमेंशन से नहीं पूछा तो लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, either in part B or in part C or in both, right? So try to understand one by one. I will tell you all these definition, and if you understand this basic definition of the linearly dependent independent, then everything can be solved, right? अब एग्जांपल देखो, जैसे दो सेट में ले रहा हूँ, पहला सेट 20, और इसके साथ मैं आज आपको कई थ्योरम भी बताऊंगा।
आई विल टेल यू सेवरल थ्योरम, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैंने आपको कई बार बताया है कि ये जैसे सेट है, राइट, इट इज क्लियर, दिस सेट। फर्स्ट यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट इज टेकन फ्रॉम विच ऑफ द टपल्स, किस स्पेस से लिया गया। तो इट इज वेरी क्लियर, ऑल दीज वेक्टर्स आर टेकन फ्रॉम टू टपल्स। देखो R2 है, R क्रॉस R है, सो R2 के एलिमेंट जितने भी होते हैं वो कैसे होते हैं, टू टपल्स में, x, y फॉर्म, राइट। यू कैन सी all these vectors, all these are vectors, alpha 1, alpha 2, alpha 3, right. First I will just clear your basic, please try to understand, और उसके बाद प्रॉब्लम तो हमें सॉल्व करना जो मेन ऑब्जेक्टिव है। अगर ऐसे दिस इज, लेट सपोज दिस द सेट B1 and we have taken another set B2 which is basically from 3 tuples, ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, राइट। सो आपको लीनियर, अब हमें पता करना है कि हमें बताना है ये लीनियरली डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट है, राइट। देयर इज सेवरल वेज टू चेक इट, आइदर यू कैन ड्रॉ द ग्राफ or I will tell you different property how you can check. First we just go through the basic method. So what I tell you the basic method, you just do the linear combination a1 a2 a3 ऐसे करो और उन सारे वेक्टर को अंदर मल्टीप्लाई करो एंड लेट्स सी। सो a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 प्लस a3 अल्फा 3, there are 3 vectors, so we have put the linear combination is basically 0, right. It is clear, it is clear, सभी को क्लियर, आवाज आ रही है। अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हम इसमें अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 की वैल्यू पुट करें। 1 0 प्लस a2 0 1 प्लस a3 0 2 इज इक्वल टू 0। अच्छा एक चीज ध्यान देना, और बहुत आसान सी चीज है, ये जब भी लिखा रहे राइट हैंड साइड में 0, इफ द लेफ्ट हैंड साइड इज 2 टपल्स मीन्स इट इज टेकन फ्रॉम R2। देखो जितने भी एलिमेंट है 2 टपल्स, फर्स्ट टपल सेकेंड टपल्स, राइट। सो द राइट हैंड साइड आल्सो कंटेन, अगर R2 से है तो दिस मीन्स दैट 0 0, राइट, 2 टपल्स। एंड नाउ आफ्टर एडिंग वी जस्ट कंपेयर एंड गेट द वैल्यू ऑफ a1 a2 a3, राइट। बहुत सिंपल सी चीज़ है। तो देखो ये हम क्या कर सकते हैं, इसको हम इसको लिख सकते हैं, अंदर मल्टीप्लाई करो ऐड करो। सो हाउ यू विल गेट द 2 टपल्स, इसके बाद भी 2 ही टपल्स मिलेंगे, यहाँ तक यहाँ से लेके 2 ही टपल्स मिलेंगे। कैसे, a1 प्लस व्हाट, जस्ट सी a2 इंटू 0, सो दिस सेकेंड टर्म विल बी 0 प्लस फर्स्ट टपल्स, देखो फर्स्ट आई ओनली ऐड द फर्स्ट टपल्स a3 इंटू 0, सो फाइनली वी विल गेट व्हाट, फर्स्ट टपल्स इज a1 प्लस 0 प्लस 0, राइट। Now what about the second tuples, a1 into 0, देखो a1 this is the second tuples, right। a1 बाहर a1 है, a1 into 0 this will be 0, first term will be 0 plus a2 into 1, so second term will be a2 and third term is 2a3, देखो यहाँ पे 2a3, right। it is clear, please let me know it is clear, सभी को clear। अब देखो यहाँ से what we are getting, if you compare both side you are getting a1 is equal to 0 and secondly you are getting a2 plus 2 a3 is equal to 0, right। please let me know it is clear। now the question is what about it is linearly dependent or independent, that is the question mark। now you can clearly see all the a1 all the ai are not 0, only a1 is 0, right। and what about a2, a2 is basically coming 2 times of a3, this doesn't mean that a2 and a3 are 0, ये थोड़ी ना बता रहा है कि a2 और a3 0 है, ये कोई ज़रूरी नहीं है, राइट। a2 a3 0 भी हो सकते हैं नहीं भी 0, सो हम देखो हमेशा लेके चलेंगे जो एक्सट्रीम केस होगा, राइट। सो ये क्या है, ये a2 और a3 एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है ना। देखो a2 और a3 दिस आर नॉन जीरो क्वांटिटी, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट इट इज़ बेसिकली जीरो क्वांटिटी, ये नहीं सपोज कर सकते कि ये जीरो होगा तभी, ये ऐसी कैसी क्वांटिटी मिल रहा है हमें, दिस आर नॉन जीरो क्वांटिटी, राइट। कोई भी ले सकते हो, अगर मैं a3 की वैल्यू 1 ले लूँ, लेट सपोज कर लूँ, तो a3 की वैल्यू अगर मैं 1 ले लेता हूँ तो a2 की वैल्यू क्या होगी, -2 होगा ना।
अरे यार कोई भी दिस A1 A2 A3 आर व्हाट आर्बिट्रेरी स्केलर्स, वी कैन टेक एनी ऑफ द वैल्यू। आर यू पीपल गेटिंग माई पॉइंट? ये क्या है? A1 A2 A3 ये कैसे फील्ड के एलिमेंट है, स्केलर है, तो कुछ भी ले सकते। A1 की जगह मैंने 3 ले लिया, तो हमें ऐसा लीनियर कम्बिनेशन तो मिल रहा है कि 0 हो जा रहा है, लेकिन A1 A2 0 नहीं। सो A1 की वैल्यू अगर मैं 0 भी रख दूँ तो 0 इंटू अल्फा 1 0 प्लस A2 की वैल्यू -2 पुट करता हूँ, -2 इंटू 0 1 एंड प्लस 1 इंटू 0 2, और इसका कम्बिनेशन 0 0 है, राइट? इट इज़ क्लियर? अब देखो ये नॉन जीरो वेक्टर है, फिर भी इसका सम 0 आ रहा है। देखो दिस स्केलर्स आर नॉन जीरो इवन इट समेशन इज 0, दिस मीन्स दैट इट इज व्हाट, लीनियरली डिपेंडेंट और इनडिपेंडेंट? अरे भैया यही तो बताए, कम से कम एक नॉन जीरो हो। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। Are people getting my point? So this example indicate it is linearly dependent. One more way you can check the same problem, and I have already tell you how you can check. अभी इस B2 पे नहीं आते, फर्स्ट वी जस्ट चेक दिस वन। देखो एक चीज़ और बना सकते हो आप, ग्राफ जरा प्लॉट करो R2 स्पेस में और देखो क्या हो रहा है। सो आप देखो R2 स्पेस में, एक इससे पहले वाले लेक्चर मैंने आपको बताया था, दिस इज लेट सपोज R, दिस इज ऑल्सो R, or you can say that this is x axis, this is y axis, and you just try to draw the graph. So first vector alpha 1 is where, this is alpha 1 comma 0, right? Are you people getting my point? What about alpha 2? Alpha 2 is this one 0 1, this is alpha 2, यही होगा ना। और तीसरा वेक्टर alpha 3 कहाँ है? देखो यहीं पे। this means that what, this indicate, यही होगा ना भाई अल्फा 3। अरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में सीधे ड्रॉ किया तो एक ही एक्सिस पे दो वेक्टर लाई कर रहे हैं, ऑन द सेम एक्सिस वी आर गेटिंग हाउ मेनी वेक्टर्स। इसका मतलब ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के ऊपर क्या है, डिपेंडेंट है। अगर मैं अल्फा 2 में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मिल रहा है, अल्फा 3 मिल जा रहा है। इसका मतलब क्या है, वेक्टर, ये जो सेट ऑफ वेक्टर्स हैं ये एक दूसरे के ऊपर क्या है, डिपेंडेंट है। क्या है, प्लीज लेट मी नो, दीज आर dependent to it. So you can say that this is linearly dependent. So not only the even I will tell you this method कि आप सेकेंड मेथड डिटर्मिनेंट भी कैसे निकाल सकते हो, राइट? उसके बाद फिर आप क्या रॉस्कियन भी निकाल सकते हो अगर वेरिएबल के टर्म में, या फिर रैंक भी निकाल सकते हो, रैंक निकाल के भी चेक कर सकते हो। तो 1 बाई 1 जैसे जैसे टॉपिक कवर करूँगा मैं सारी टेक्निक आपको बताऊँगा और सब कुछ आपको सीखना भी है, राइट? नाउ आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीवन, सभी को क्लियर हो गया। अब चलते हैं थोड़े से, आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीवन। और दूसरा भी आप बता सकते हो, देखो यहाँ भी आपको पता चल गया, विदाउट कैलकुलेटिंग एनीथिंग यू कैन वेरी इजीली टेल अबाउट द सेकेंड वन इज बेसिकली लीनियरली डिपेंड। और ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस से आती हैं, जैसे जैसे आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे आपको देखते ही समझ में आने लगेगा। देखो ये अल्फा 2 और अल्फा 1 को देखो, अगर अल्फा 1 बस ये है कि ऑल दिस आर टेकन फ्रॉम R3 स्पेस, है ना। हर टपल्स के पास कितने वेक्टर्स, हर वेक्टर के पास कितने टपल्स हैं, 3 टपल्स हैं। देखो 1 0 0 कितने टपल्स आ रहा है, पहला दूसरा तीसरा, 3 टपल्स है। सो अल्फा 1 और अल्फा 2 एक ही एक्सिस पे हैं। देखो कैसे, अगर अल्फा 1 में मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या मिल जाएगा, अल्फा 2 मिल जाएगा। देखो 1 0 0 एंड दिस इज 2 0 0। आर यू पीपल गेटिंग माई पॉइंट? प्लीज लेट मी नो। It is clear. So now see few of the important property, and after that we also solve the problem. So now see the important property of the linearly dependent and independent. If it is required we also do the proof, right? So important result, or you can say that the properties. So first important result is what, you can also note down and I have already discussed these things. तो देखो अगर कोई भी सेट, इफ एनी सेट इज गिवन और उस सेट के पास एक भी अगर कहीं 0 वेक्टर दे देता है, राइट? ये शायद प्रॉपर्टी मैंने सारे प्रॉपर्टी लिखवाए भी हैं नोट्स में भी, ये सारे प्रॉपर्टी मैंने लिखवाए भी हैं। सो नाउ सी, अगर कोई भी सेट आपके पास दे रहा है, एनी सेट इज गिवन, राइट? इफ एनी सेट इज गिवन और उसके पास एक अगर कोई भी वेक्टर 0 हो जाए। अब देखो यहाँ मान लो ऐसे दिया 1 0 0
एंड दिस इज 0 0 1, और कोई भी कुछ भी हो, कुछ भी ऐसे दे दे। अगर एक वेक्टर 0 है, 0 का मतलब 3 टपल्स में लेना पड़ेगा, सो 0 0 0। अगर किसी कोई भी सेट आपके सामने लिखा, बहुत बार ऐसे एग्जाम में दे देता है, इफ एनी सेट इज गिवन एंड वन ऑफ द वेक्टर इज बेसिकली 0 वेक्टर, अगर एक वेक्टर उसका क्या हो जाए, क्या हो जाए, 0 वेक्टर, इफ वन ऑफ द वेक्टर इज 0 वेक्टर, देन कोई भी कितने भी एलिमेंट इसके अंदर हो, डजेंट मैटर, अगर एक वेक्टर इसका 0 वेक्टर है तो ये 100% लीनियरली क्या होगा, डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट? हाँ, अभी डांट सुनने वाले हो सब, डिपेंडेंट हो, 100% श्योर। पूछो क्यों? अगर किसी भी, इसमें कितने वेक्टर्स दे रहे हैं, 4 वेक्टर्स, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4। अरे यार बहुत नेचुरल सी बात है कि अगर मैं इसका लीनियर कम्बिनेशन करूंगा, राइट, बाकी को तो देखना ही नहीं है, जस्ट सी, वी नो नीड टू जस्ट सी द अदर्स, बिकॉज द फर्स्ट वेक्टर इज व्हाट, द फर्स्ट वेक्टर इज 0 वेक्टर, एंड अगर ये 0 वेक्टर हो गया तो ये जो इसका मल्टीपल है क्या होगा, बताओ? बाकी के बारे में हमने कुछ सोचना ही नहीं। इफ दिस इज 0 वेक्टर, 0 वेक्टर मीन्स व्हाट, ईच ऑफ द एलिमेंट इज बेसिकली व्हाट, ईच ऑफ द टपल्स इज 0। अगर ये 0 वेक्टर है तो इसका जो मल्टीपल है वो क्या होगा, नॉन 0 होगा। अरे यार क्या सोचनी, इसमें क्या सोचने वाली बात है? इफ द प्रोडक्ट इज बिकम 0, दिस मीन्स दैट वन either a1 is 0 or this is 0. It is already given the one of the vector. If one of the vector is 0, अगर एक वेक्टर 0 है तो जो भी सेट दिया है आंख बंद के उसको क्या बोलना है, लीनियरली डिपेंडेंट। क्यों? क्योंकि ये क्या होगा, नॉन 0 होगा। इट इज क्लियर? सो एनी सेट कंटेनिंग 0 वेक्टर इज ऑलवेज व्हाट, लीनियरली डिपेंडेंट। क्लियर? यही तो मैंने आपको डिफिनीशन बताया कि एटलीस्ट कम से कम एक नॉन 0 स्केलर आ जाए। क्लियर? प्लीज लेट मी नो दिस इज क्लियर। अरे हाँ ना बोलो यार। यस सर। इट इज क्लियर। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट है और कई बार एग्जाम में आता है, स्टूडेंट कई बार कंफ्यूज भी रहते हैं इसमें। देखो दो चीज़ मैं बोलूँगा, यहाँ लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट, दीज आर एनालिसिस टाइप एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस वन। Linearly dependent, I think it is clear to everyone, and linearly independent, this is also clear to everyone, right? So I just ask you I just writing 2 statement, and you people just try to analyze which one is always correct and which one is not correct, right? तो देखो मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, every सबसेट, आप जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, यू कैन टेक द काउंटर एग्जांपल और आप काउंटर एग्जांपल लेके उसको सबसेट बनाओ, देखो क्या हो रहा है। एवरी सबसेट ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स इज लीनियरली डिपेंडेंट, राइट? It is clear? It is clear? Every subset of, you can this type of question can be asked in part C. Try to understand. आप जब तक एनालिसिस करना नहीं सीखेंगे, मैं यहाँ कुछ भी घोल के पिला दूँ कोई मतलब नहीं है। मैं बार बार हर लेक्चर में बोलता आ रहा हूँ, every subset of linearly independent set of vectors is linearly independent, right? So I have just mentioned the 2 statement, इसको ऐसे भी बोल सकते हो, statement 1 and statement 2. So I just create the poll option. कोई दिक्कत नहीं, आपको 10 मिनट का टाइम लग जाए, आप इधर उधर हाथ पांव मारने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, आप सेट बनाओ जो आपको बताया लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का। सबसे आसान सा मैंने आपको, अगर कुछ नहीं आवे आप स्टैंडर्ड बेसिस उठाओ। स्टैंडर्ड बेसिस सभी को पता है ना, 1 0 0, अगर 3 टपल्स में ले रहे हो 0 1 0 और 0 0 1, ये क्या होते हैं आपस में, सब
बेस जो स्टैंडर्ड बेसिस होता है क्या होता है, बेसिस तो ऑलवेज इंडिपेंडेंट होता है। तो ऐसा एग्जांपल लेके कोशिश करो क्या ऑप्शन सही हो सकता है। ये मैं कह रहा हूँ फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, सेकंड इज ऑल्सो ट्रू, राइट। फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स, सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स, राइट। सभी बैठ के आराम से सोच विचार के करेंगे, कोई जल्दी नहीं है। मुझे भी आपको एक प्रॉब्लम सॉल्व करो लेकिन 100% श्योरिटी के साथ, गारंटी के साथ सॉल्व करो। फर्स्ट इज ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स, राइट। एंड द लास्ट वन इज क्या बचा भाई, दोनों ट्रू दोनों फॉल्स। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स, सेकंड इज ट्रू। सो यू पीपुल जस्ट ट्राई टू सॉल्व एंड गिव द आंसर कि क्या हो सकता, कौन सा स्टेटमेंट। सभी को क्लियर हो रहा है ना, क्वेश्चन में तो कोई इफ बट नहीं है। आप जरा सेट लेके उसका लीनियरली डिपेंडेंट कोई सेट लो और उसका सबसेट लो। यहाँ पे वर्डिंग लिखा हुआ है एवरी, एवरी लिखा हुआ है, हर सबसेट। बहुत आसान है, आप थोड़ा सा एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। फिर मैं देखो अभी सबसेट को सुपर सेट में चेंज करूँगा। चलिए आप सभी को मेरी वॉच, स्टॉप वॉच नेहा की तरह लेट आएगी और यहाँ पे क्लिक हो जाएगी, राइट। अभी देवनाथ कुछ नहीं आप लिखेंगे, इट इज़ माय रिक्वेस्ट टू एवरीवन। नेहा फ्रॉम आसाम, देखो आसाम में इस समय बारिश हो रही भाई, कोई भी लेट आ सकता है, 10:30 बजे 11 बजे। क्यों नेहा? नहीं सर, मुझे पता ही नहीं चला क्लास हो रहा है बोल के। नहीं, बहुत बढ़िया। चलो सॉल्व करिए जल्दी से। मैं किसी से भी पूछ सकता हूँ, आई कैन आस्क टू एनीवन। हम ये नहीं पूछेंगे आंसर सही है गलत है, आप पूछेंगे कौन सा काउंटर एग्जाम्पल लेखा, क्या सोचा, बताइए मुझे। तीन मिनट का टाइम दे रहा हूँ, सभी सोच के मुझे बताएं। राजलक्ष्मी इज टेलिंग ऑप्शन नंबर डी। अच्छा देखते हैं, जस्ट वेट राजलक्ष्मी। Those who have given the answer, I will also ask why not the others. Just try to understand. गुड इवनिंग रत्नाकर, गुड इवनिंग एवरीवन। सभी ने मैसेज किया था, मैंने ध्यान नहीं दिया, कोई बात नहीं। Most of the people are giving option number D. बहुत सिंपल सा है, कोई भी काउंटर एग्जाम्पल आप लीनियरली इंडिपेंडेंट का या लीनियरली डिपेंडेंट का उठाओ और उसका सबसेट बनाओ और देखो क्या वो ऑलवेज पॉसिबल है जो हो रहा है, राइट। बहुत आसान सा है, थोड़ा सा आपको सोचने की भी ज़रूरत है, घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, 1% भी। चलिए इसको स्टॉप करता हूँ, वॉच को स्टॉप कर देता हूँ। अब देखो पहले जब कुछ न आवे, कभी भी क्वेश्चन देख के घबराओ नहीं, थोड़ा सा कूल रहो पेशेंस के साथ। और आपसे पूछा है लीनियरली डिपेंडेंट, कह रहा है एवरी सबसेट, कोई भी सबसेट हो, यू कैन टेक एनी सबसेट ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट सेट इज ऑलवेज व्हाट, लीनियरली डिपेंडेंट, यही कह रहा है ना। तो आप एक काम करो, जरा काउंटर एग्जांपल लेते हैं। यस नाउ सी, पहले एक लीनियरली फॉर टू प्रूव द फर्स्ट वन कई काउंटर एग्जांपल ले सकते हैं। वी कैन जस्ट टेक ए फर्स्ट एग्जांपल और उसका सबसेट बनाने की कोशिश। तो हमें क्या दिया हुआ पहले क्वेश्चन, लीनियरली डिपेंडेंट होना चाहिए। तो ये तो बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो बहुत आसानी से। एक सेट लेते हैं, बी इज़ द सेट विच इज़ लीनियरली डिपेंडेंट। तो एक काम करो, 1 0 सबसे छोटा बनाने की कोशिश करो। देखो ये 2 0 बना लो, देखो लीनियरली डिपेंडेंट हो गया। एक और एलिमेंट ऐड कर दो 0 1, राइट। और इसका एक ऐसा सबसेट बनाओ
जो इंडिपेंडेंट हो, डिपेंडेंट ना हो, क्योंकि हमें काउंटर एग्जाम्पल से डिस्कार्ड करना है. सो देखो बी इज द व्हाट, वन सेट विच इज लीनियरली डिपेंडेंट, है ना. देखो देखने से ही पता चल रहा है. देखो इस अल्फा 1 में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दो अल्फा 2 मिल जाएगा, राइट. तो बहुत क्लियर है. देखो एक प्रॉपर्टी भी होती है, अभी मैं आगे आपको बताऊंगा, कि अगर आपके पास सेट ऑफ वेक्टर्स हैं, अगर कोई भी एक वेक्टर अंदर का दूसरे से स्केलर मल्टीपल से मिलता है तो वो ऑलवेज डिपेंडेंट होता है, राइट. और वैसे भी ड्रॉ करके भी बताया. तो अब एक काम करते हैं, हम इसका एक ऐसा सबसेट लेते हैं, क्योंकि हमें तो ये दिखाना है ना कि एवरी सबसेट ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर इज डिपेंडेंट. तो उल्टा सोचने की कोशिश करो, ऐसा सेट लो जो इंडिपेंडेंट हो. तो पहले के साथ अगर ये इसका सबसेट लेते हो b1 विच इज़ बेसिकली सबसेट ऑफ b, क्यों, क्योंकि b1 हम एक ऐसा सेट ले रहे हैं, इसी का 2 एलिमेंट को ले लेते हैं, तो इसका सबसेट हुआ ना. अरे सबसेट तो ये हो गया कि नहीं सबसेट, बताओ. दिस b1 इज सबसेट ऑफ, और ये क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है. बहुत है क्लियर. 1 0 एंड 0 2 दिस इज द स्टैंडर्ड बेसिस किसका है, R2 का, है ना, R2 का. अभी मैं बेसिस भी डिस्कस करूंगा, घबराओ नहीं. लेकिन मेरे ख्याल से सबने पढ़ा भी होगा. देखो ये दोनों अलग अलग एक्सिस में है. देखो ये 1 0 है, ये 0 1 है, तो ये दोनों क्या हो गए, लीनियरली इंडिपेंडेंट. तो ये तो स्टेटमेंट फॉल्स हो गया ना, जो यहाँ पे लिखा हुआ है एवरी सबसेट. कहाँ है, एक ऐसा सबसेट लिया जो क्या हो रहा है, लीनियरली डिपेंडेंट का सबसेट है, उसका मैंने सबसेट लिया, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो रहा है. तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स स्टेटमेंट. तो जहाँ जहाँ ट्रू है उसको तुरंत काट दो भाई. पहला कह रहा है ट्रू है, पहला यहाँ भी कह रहा है ट्रू है, तो इसमें तो तुरंत ये चला जाएगा, ये तो फॉल्स स्टेटमेंट है. यहाँ पे कह रहा है दोनों फॉल्स है, सेकंड ऑप्शन नंबर बी में, और ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है फर्स्ट इज फॉल्स, सेकंड इज ट्रू. नाउ वी चेक द लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट. इसका भी एक सेट बनाओ यार. तो एक काम करता हूँ, नेक्स्ट में बनाता हूँ. अब इंडिपेंडेंट सेट बनाते हैं जिसका हर वेक्टर इंडिपेंडेंट हो. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. तो एक काम करते हैं 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1, राइट. दिस वेक्टर इज व्हाट, सब एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है. दिख रहा है ना. अरे ऐसे भी सभी को पता है ना, a 1 0 0 प्लस b 0 1 0 एंड प्लस c 0 0 1. ये तीनों वेक्टर क्या हैं, दीज वेक्टर आर लीनियरली इंडिपेंडेंट. अभी थोड़ा सा पढ़ लो, फिर ये सारी चीज़ें अपने आप, इतने सारे मेथड आपको डिटर्मिनेंट निकाल के. ये तो स्टैंडर्ड बेसिस है, पता है, सभी को पता है ना. ये किसका बेसिस है, R3 का बेसिस एलिमेंट है. अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, राइट. या हर जगह E1 E2 E3 लिखा रहता है, तो इंडिपेंडेंट है. अच्छा इसका कोई भी सबसेट उठा के देखो, कोई भी सबसेट, वो सारे ही क्या हैं, इंडिपेंडेंट है. देखो 1 0 0, राइट, 0 1 0, कोई भी सबसेट उठा, ये देखो क्या है, दोस्तों एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट है ना. अरे दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट. क्लियर. अगर आप सिंगल भी कोई एलिमेंट लेते हो, ये भी क्या है, ये नॉन जीरो है, तो इसके साथ जो मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा. अरे यार इसका a, इसको अल्फ़ा 1, इसको अल्फ़ा 2 ले लो, a अल्फ़ा 1 प्लस a2 अल्फ़ा 2. तो इसका जब लीनियर कम्बिनेशन 0 के बराबर करोगे, देन इन दिस केस a1 एंड a2 बोथ विल बी 0 होगा ना. अरे यार दोनों अलग अलग एक्सिस पे हैं. ये भी देखो, इसका भी लीनियर कम्बिनेशन करोगे तो ये तो नॉन जीरो है, यानी a क्या होगा, a विल बी 0. सो इफ़ यू टेक एनी ऑफ द, कोई भी इंडिपेंडेंट अगर सेट लेते हो, कोई भी इंडिपेंडेंट वेक्टर का सेट, राइट, तो उसका जो सबसेट होगा, कोई भी सबसेट, एवरी सबसेट इज लीनियरली व्हाट, इंडिपेंडेंट. इट इज क्लियर. every subset of the linearly independent what set is linearly independent. it is clear. कोई भी सेट उठा के देख लो आप, बात क्लियर है. देखो एक चीज ध्यान दो और आसानी से समझ सकते हो. देखो एक चीज ध्यान दो, यहाँ पे अगर कोई भी स्पेस में एलिमेंट है, राइट, कोई भी किसी भी स्पेस में R3 R4 R4 किसी भी टपल्स में आप ले सपोज कर लो R R R R R. सो ये R5 का स्पेस है, राइट. दिस इज फ्रॉम R5 स्पेस, दैट इज R क्रॉस R क्रॉस R क्रॉस R क्रॉस R, राइट. अगर सारे एलिमेंट इंडिपेंडेंट है, मतलब कोई किसी पे डिपेंडेंसी नहीं है, तो अगर उसका छोटा वाला भी पार्ट लोगे तो भी क्या होगा,
इंडिपेंडेंट होगा। दिक्कत क्या है, पहले से अगर 10 पीपुल हैं जो इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं, तो उनका अगर 5 आदमी को लोगे उसमें से वो भी इंडिपेंडेंट हो गए, 2 आदमी को लोगे वो भी क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा, राइट। इट इज क्लियर। सो इंडिपेंडेंट का सबसेट ऑलवेज क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। इट इज क्लियर। अब एक और क्वेश्चन इसी पे मैं राइज करूंगा। सो आई थिंक दिस इज क्लियर। द सेकेंड स्टेटमेंट इज व्हाट, ट्रू। इट इज क्लियर। this statement is always true and this first statement is false, so this last option is correct। ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, राइट। अब इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा और देखो, जब आप CSIR लेवल की तैयारी कर रहे हैं, गेट लेवल की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी नेशनल लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको क्रिएटर भी बनना पड़ेगा। जिस दिन ये समझ लो कि मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा क्रिएट भी कर पा रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन को आपको क्रिएट करूँ। अभी हमने क्या लिया, सबसेट लिया। अब एक काम करता हूँ, सुपर सेट लेता हूँ। द स्टेटमेंट इज रिमेन सेम एंड नाउ आई आस्क द अनदर क्वेश्चन टू यू ऑल, राइट। कोई जल्दी तो नहीं भाई, देखो ये क्वेश्चन अभी PDF शेयर कर दूंगा, उस बेसिस पे ये सब आप सॉल्व कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। 100 बार आपने कई बुक भी देखा होगा, इधर उधर भी आप सभी देखते ही रहते हो, मुझे सभी को पता है, लेकिन हमें वो उस चीज़ पे नहीं जाना है। मुझे आपको टेक्निक सिखानी है कि आपको हैंडल कैसे करना, आपको सोचने की एबिलिटी कैसे बढ़ानी है। अब कोई क्वेश्चन जो CSIR का दिया है, 10 साल का, बोलता है सर मैंने 10 साल के क्वेश्चन के CSIR पेपर सॉल्व कर लिए, फिर भी मैंने इस बार 60 नंबर पाया, 50 नंबर पाया, गेट नहीं क्वालिफाई कर पाया, क्यों सर? तो देखिए एक चीज़ देखो, आपने रटाई विद्या पे ध्यान दे रहे हो। रटने का मतलब समझ रहे हो, वही किसी ने सॉल्व किया, वही देख देख के आपने कॉपी पे उतार लिया, वही। देयर इज सेवरल प्लेटफॉर्म वेयर दीज थिंग्स आर गिवन। और कभी कभी होता है ना कि मैं आपको फिर भी कई बार लेक्चर में बोलता हूँ कि बधे हुए हाथी की तरह काम ना करो। अगर बधे हुए हाथी की तरह काम करोगे तो अपनी ताकत का तुम्हें पता ही नहीं लगेगा, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में भी वही समझोगे कि कोई आके मेरा पैर बंधा हुआ है और मैं इसको तोड़ नहीं सकता जंजीर को, जबकि हाथी के पास बहुत बड़ी ताकत हो चुकी है बड़ा होने के बाद, लेकिन वो बचपन से जंजीर की ताकत नहीं तोड़ पाया, तो उसको लगता है कि मैं इस काम को नहीं कर सकता, राइट। तो आपको थोड़ा सा क्रिएटर भी बनना पड़ेगा। अब देखो मैं अगला स्टेटमेंट लिखता हूँ, सेम 2 स्टेटमेंट आई जस्ट मेंशन। फर्स्ट स्टेटमेंट सेज एवरी सुपर सेट। अब सुपर सेट की डिफिनेशन तो सब जानते हैं ना, एवरी सुपर सेट ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट set of vectors is linearly dependent, right? Dependent. Please mute your mic, please. First I just write the question and then you just discuss, right? So second statement is that every superset of linearly independent set of vector, इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स है, उसका मैं सुपर सेट बना रहा हूं, राइट। सेट ऑफ वेक्टर्स इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। इट इज क्लियर? क्लियर? ऑप्शन वही सेम देता हूं मैं। फर्स्ट इज ट्रू, second is also true. First statement is false, second is also false. Third statement, first is true, second is false, and the last option is first is false and second is true. सोच के आप करेंगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं, राइट। You just try to think first, don't try to copy any others, right? Don't try to copy any others or from anywhere. आप अपने मन से सॉल्व करने की कोशिश करिए, घबराइए नहीं। मैं आपको सारी टेक्निक धीरे धीरे, आज गलतियां हो सकती है, 2 दिन बाद आपको एहसास होगा कि मैं इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। घबराओ नहीं, इंडिपेंडेंट मुझे आपको बताना है, डिपेंडेंट नहीं बनाना है। So the answer will be given by नेहा सिंह from गोरखपुर, क्योंकि आई थिंक नेहा कई है ना, मेरे बैच में 3-4 नेहा आ गई हैं। नेहा आसाम, नेहा यूपी, हर देश का हर कोने का जब तक ना हो तब तक क्यों नेहा? Yes, sir. तो एक आसाम एक गोरखपुर। चलो
सुपर सेट का मतलब उससे हमें बड़ा सेट क्रिएट कर देना है, राइट। उससे बड़ा सेट, जो सेट दिया है दो दो वेक्टर हैं तो एक बड़ा सेट ले लो, उससे बड़ा सुपर सेट, एक और एलिमेंट ऐड करके। आसाम में बारिश हो रही जी नेहा? नहीं सर, काफी गर्म है यहाँ पे। अरे वहाँ भी हम लोग सोच रहे हैं हम ही लोग सर परेशान हैं। बहुत दिन से काफी गर्म है। ओ, मैं तो सोच रहा हूँ आसाम। 38-39 तक चल रहा है। अरे बाप रे, तब तो मतलब हम ही लोग की तरह, मतलब पूरा एनसीआर और यूपी पूरा और बिहार में भी मेरे ख्याल से टेम्परेचर हाई ही है। राजस्थान में Yes, थोड़ी sir. बारिश हो रही है। राजस्थान से कोई है? अच्छा है तो पुरुषोत्तम। क्यों पुरुषोत्तम, बारिश हो रही ना वहाँ? जी जी सर, बहुत बारिश हो रही बारिश हो रही है सर, बहुत बारिश हो रही है। हम नेचर के साथ खेल रहे हैं तो नेचर भी तो हमारे साथ खेलेगा, क्यों? जहाँ बारिश होनी चाहिए वहाँ बारिश नहीं हो रही है, मतलब पूरा पहले डिसबैलेंस। बिल्कुल नहीं होती थी। इधर तो बिल्कुल नहीं हो रही है नॉर्थ में। नाउ सी, बेसिकली मोस्ट ऑफ द पीपल आई हैव गिवन ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले हमें जैसे आपको सेट बनाया वैसे पहले लीनियरली डिपेंडेंट सेट बनाओ, उसका फिर सुपर सेट लो, और ऑलवेज निगेटिव सोचने की कोशिश करो। निगेटिव का मतलब लीनियरली डिपेंडेंट है तो इनडिपेंडेंट ऐसा सुपर सेट बनाओ कि लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाए, राइट। देखो क्वेश्चन को कभी भी बहुत डीप में भी नहीं जाने की ज़रूरत है। आप पहले क्या करोगे, पहला हम देखते हैं, हम एक सेट बनाते हैं। वी जस्ट फॉर्म द सेट B1 दैट इज बेसिकली डिपेंडेंट बनाते हैं सेट, डिपेंडेंट सेट। चलो 3 टपल्स का बना लेते हैं या 2 टपल्स का, जैसे भी चाहो। ये हमारे पास डिपेंडेंट सेट है ना। इसके वेक्टर क्या हैं आपस में, सारे देखो क्या हैं, इसको 3 कर लो। ये सारे वेक्टर्स क्या हैं एक दूसरे को, बट डिपेंडेंट है ना। अरे हाँ ना, बताओ। लीनियरली डिपेंडेंट है, बहुत क्लियर है, देखने से पता चल रहा है। इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं ये मिल जाएगा, इसमें 3 से मल्टीप्लाई, तो ये बहुत क्लियर है कि ये आपस में वेक्टर डिपेंडेंट है, राइट। इट इज़ क्लियर नाउ। अब इसका मैं सुपर सेट बनाता हूँ। सुपर सेट का मतलब देखो, अगर मैं एक B2 बनाता हूँ जो इस सेट को भी कंटेन किया हुआ है, तो बहुत आसान एक काम करते हैं, B2 सेट बनाते हैं इससे बड़ा सेट, राइट, इससे बड़ा सेट बनाते हैं। अच्छा अगर डिपेंडेंट है तो अगर क्या मैं उससे बड़ा बना दूं, मान लो एक एलिमेंट अलग तरीके का ऐड कर दूं, तो क्या ये सेट इंडिपेंडेंट हो जाएगा क्या? तो सर ये भी क्या होगा, जब एक डिपेंडेंट बन गया तो उससे बड़ा कुछ भी बनाओ वो क्या होगा, बताओ? डिपेंडेंट होगा। ऑलवेज डिपेंडेंट होगा, क्योंकि देखो डिपेंडेंट की डिफिनीशन आपने क्या पढ़ी कि A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस A3 अल्फा 3 इक्वल टू 0। और आपने पढ़ रखा ऑलरेडी, इसका लीनियर कम्बिनेशन करेंगे 0 होगा। इसमें से कम एट लीस्ट 1 ऑफ AI, एक इसमें से नॉन जीरो है तब भी ये 0 हो जा रहा है, राइट, इट इज सेटिस्फाइड। तो अगर मैं इसके साथ एक और वेक्टर ऐड कर दूं A4, दिस इज एडिशनल वेक्टर, तो इस पर क्या फर्क पड़ने वाला है? ये तो ऑलवेज क्या नॉन जीरो, इसके बाद ऐड करोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको भी आपको क्या बनाना पड़ेगा, A4 अगर 0 भी कर दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 0 चाहे नॉन जीरो हो या जीरो, डजेंट मैटर, नॉन जीरो है। अगर A4 देखो, A4 नॉन जीरो है तो भी ये लीनियरली डिपेंडेंट है, और A4 अगर 0 हो गया तो भी लीनियरली डिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि ये पहले से जो आपने लीनियर कम्बिनेशन बता रखा कि ये डिपेंडेंट है, सो उसका सुपर सेट ऑलवेज क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट, राइट। क्योंकि ये वेक्टर तो इसी सेट में है ना, ये तो वेक्टर पहले से, इससे बड़ा सेट ले रहे हो, ये तो वेक्टर पहले से है जो डिपेंडेंट है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इट इज ऑलवेज लीनियरली डिपेंडेंट। क्लियर? प्लीज लेट मी नो यस इट इज सर। क्लियर। यस तो सर। सुपर सेट अगर लेते हैं किसी भी डिपेंडेंट सेट का, सो इट इज ऑलवेज डिपेंडेंट। इफ B1 is dependent, linearly dependent, then once you take its superset B2, it is always what, linearly dependent. Clear? It is clear? सर सभी को clear? अब एक काम करते हैं, अब एक इंडिपेंडेंट सेट लेते हैं और उसका भी सुपर सेट बनाते हैं।
जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड वन बाई वन ईच एंड एवरीथिंग। अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत लगे 2 बार 4 बार 10 बार आप पूछो, यू कैन आस्क एनी नंबर ऑफ टाइम। आई एम नॉट इन हरी। देख ही रहे हो मैं लेक्चर थोड़ा धीरे ही चला रहा हूँ अभी, राइट? कोई दिक्कत नहीं है, जितना आप पढ़ लीजिए उतना डीपली पढ़िए। आपका लेक्चर टाइम के साथ मैं पूरी कवर करूँगा, इसके लिए निश्चिंत रहो। प्रीवियस भी लाइव डिस्कशन है, उसको भी अवेलेबल करा दे, तो जितना मैटर चाहिए आप ले लो, लेकिन खाली ना बैठो, दिन और रात बैठ के मेहनत बस करो। अब नाउ वी टेक अनदर सेट, राइट, B1। और अब मैं ले रहा हूँ सेकेंड केस में, वी जस्ट टेक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। पहले एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट बनाते हैं और फिर उसका भी सुपर सेट बनाया जाता है, और देखते हैं क्या है। सभी को पता है स्टैंडर्ड बेसिस लेना सबसे आसान है। सो दिस सेट इज व्हाट? दिस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। व्हाई? इट इज फ्रॉम वेयर? इट इज फ्रॉम स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ R3। ये क्या है? स्टैंडर्ड बेसिस ही तो है, क्यों? पढ़ा है ना सबने बेसिस। ये सब इंडिपेंडेंट है। देखो, एक जा रहा है ईर घाट, दूसरा बीर घाट, तीसरा कहीं और जा रहा है, सब अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। भाई मेरा रास्ता अलग है, आपका रास्ता अलग है, सब अब इंडिपेंडेंट है। मैं अपनी कमाई कर रहा हूँ, मतलब अपने ले रहा हूँ, तुम अपना काम कर रहे हो, मैं अपना। हम आपके ऊपर डिपेंड नहीं, मैं अपना एग्ज़ाम खुद क्वालिफाई कर लेंगे। ये सारे लोग इंडिपेंडेंट है, राइट? देख रहे हैं ना तीनों लोग अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2 एंड अल्फ़ा। ऑल दीज 3 आर इंडिपेंडेंट। अब जरा मैं इसका एक सुपर सेट बनाता हूँ, और क्या ऑलवेज ज़रूरी है कि वो इंडिपेंडेंट हो? देखो ध्यान देना, आप इसका मैं सुपर सेट बना रहा हूँ, और सुपर सेट एक काम कर सकता हूँ, B2 में ले रहा हूँ। देखो ये एलिमेंट तो रहेंगे ही, ऑल दिस एलिमेंट आर, और मुझे इसका निगेटिव सोचना का मतलब एक ऐसा एलिमेंट इंक्लूड कर दे जिससे ये लीनियरली डिपेंडेंट बन जाए। तो देखो इसका एक सुपर सेट बना सकते हो। यहाँ 1 0 0 है, एक काम करो, इससे एक बड़ा एलिमेंट और इंक्लूड कर लो। अब बताओ ये दोनों कैसे हो गए एक दूसरे के ऊपर? लीनियरली डिपेंडेंट। तो ये जो स्टेटमेंट था कि एवरी सब सुपर सेट आप लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है, क्योंकि ये क्या हो गया? लीनियरली डिपेंडेंट हो गया। उसका मैंने सुपर सेट बनाया, किसका? B1 इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, एंड नाउ वी मेक इट सुपर सेट, जो कि क्या है? देखो अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 4 के ऊपर डिपेंडेंट है ना? बताओ मुझे। जबकि अभी वो मैंने लिया किसमें? डिपेंडेंट का केस। मैं ऐसा कोई एलिमेंट नहीं इंक्लूड कर पा रहा था कि वो इंडिपेंडेंट हो जाए। क्यों? क्योंकि पहले से डिपेंडेंट वेक्टर्स हैं। ऑल दीज वेक्टर्स आर व्हाट? डिपेंडेंट टू ईच अदर। अब इससे बड़ा वेक्टर बन ही नहीं पा रहा है। बात क्लियर है? इट इज क्लियर? प्लीज लेट मी नो, क्योंकि वो तो डिपेंडेंट पहले से वेक्टर इसी में है, और इंडिपेंडेंसी केस तब आएगा जब सब अलग अलग डायरेक्शन में जाए, और वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि पहले से डिपेंडेंट वाले आ चुके हैं अंदर, राइट? इट इज क्लियर? प्लीज लेट मी नो। क्लियर है सभी को? यस सर। सो ये सुपर सेट की सर कहानी। अगर एवरी के बजाय सेकंड ऑप्शन में भी हो तो ये लीनियर इंडिपेंडेंट वाला केस ट्रू हो सकता है? हाँ, अगर ऐसा लिखा हो मे बी, तब आप बना सकते हो, तब इट इज ट्रू। वाई? अब देखो इसको भी, क्योंकि यहाँ पे इंडिपेंडेंट। अच्छा बताओ, इंडिपेंडेंट हो पाएगा अगर इसका सुपर सेटअप लेते हो? कोई मुझे बताए। अगर जैसे यहाँ पे इंडिपेंडेंट है, राइट? इंडिपेंडेंट है, अगर कह दे कि मे बी इंडिपेंडेंट, बताइए सबसेट। तो एक चीज, आप कौन पूछ रहा था? योर नेम? सर मंजू। मंजू देखिए ये ट्रू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि खुद एक जो सेट ए मे होता है, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हो सकता है, डिपेंडेंट भी हो सकता है, हाँ डिपेंड हो ऑन सकता है, द पॉसिबल है। क्यों? कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स। क्योंकि हर जो सेट होता है, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, राइट? तो हम इसका ये भी कह सकते हैं, सबसेट या सुपर सेट बना सकते हो ना। अरे खुद का सेट का खुद सेट अपना तो सबसेट या सुपर सेट तो होता ही है, राइट? यस सर। बना सकते हैं ना। तो आप कह सकते हो कि ये इंडिपेंडेंट भी हो सकता है, खुद का ही हो सकता है। अगर मे बी हो तो, हाँ, अगर may be। एवरी हो तो ट्रू नहीं है। एवरी हो तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि मैं अगर कोई भी एक नया वेक्टर इस तरीके से ऐड कर दूं तो ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाएगा, राइट? यस सर। सो आपको कैन बी, अगर कहीं लिखा रहा है कैन बी, राइट? मे बी,
तो इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है। अगर एक भी काउंटर एग्जाम्पल ट्रू हो जा रहा है तो उस केस में आप क्या बोलेंगे, ट्रू बोलेंगे। एक भी अगर काउंटर एग्जाम्पल हो जाए, सो दिस ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट बेसिकली। फर्स्ट इज ट्रू, सेकंड इज फॉल्स, यही है ना। हेलो, अरे हाँ ना बोलो यार से। यस सर। चलो एक कम से कम, बहुत हमने डिस्कस किया, एक कम से कम CSIR के पे प्रॉब्लम सॉल्व किया जाए। सो मेरे ख्याल से अभी सभी को Yes, sir. बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा इस पे। अच्छा, डायमेंशन पूछा हुआ छोड़ो, बेसिस है इसको भी छोड़ो। अच्छा, वेक्टर सब स्पेस पढ़ चुके हैं, लीनियरली डिपेंडेंट है नहीं, अभी सब बेसिस और डायमेंशन से क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, बेसिस भी डिपेंडेंट है इसी पे। तो अभी जितने भी क्वेश्चन लिए उसमें सब अभी बेसिस डायरेक्ट नहीं दिख रहा है, लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, लेकिन कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को तो हम सॉल्व कर चुके हैं ना। इस पे देखो, ऐसे क्वेश्चन मतलब इसकी थ्योरी हम पढ़ चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ फंक्शन फ्रॉम R to R इज वेक्टर स्पेस ओवर R, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। पूछ रहा है ये S1 वेक्टर स्पेस बताया ना आपको, कोई भी सेट कोई भी V कब वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है। दो प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बताया जो आपको एग्जाम में यूज करना है इन एग्जाम, दिस टू प्रॉपर्टी। पहला क्या बताया था, कोई भी स्पेस तभी फॉर्म होता है जब उसके पास एक रेफरेंस पॉइंट हो, पॉइंट जीरो वेक्टर चेक। जीरो वेक्टर। पहला जीरो वेक्टर और वेक्टर। रेफरेंस पॉइंट जरूर होना चाहिए। तो पहले चेक करो कि जितने भी सेट बनाए हैं, जैसे यहाँ S1 S2 S3 तीन सेट है, इसमें सब फंक्शन का सेट बनाया, तो पहले देखो क्या जीरो फंक्शन है या नहीं है। बात क्लियर है। अगर जिसमें जीरो फंक्शन नहीं होगा वो कभी भी वेक्टर स्पेस नहीं बनाएगा। और सेकंड प्रॉपर्टी क्या बताया था, A α1 प्लस B α2। अगर मैं एवरी α1 α2 अगर कोई दो एलिमेंट लेता हूँ उस सेट से, तो उनका लीनियर कम्बिनेशन स्केलर्स के साथ करूँ तो भी उसमें लाई करना चाहिए, मतलब दोनों को ऐड करो, दो वेक्टर को, तो F1 F2 दो फंक्शन ले लो, उनको ऐड करो तो भी उसी में बिलोंग करना चाहिए, राइट। तो मुझे जरा करके इस क्वेश्चन को बताइए कि कौन कौन सा S1 S2 S3 में कौन कौन सा सबसेट होगा और कौन कौन सा सबसेट नहीं होगा, राइट। इट इज क्लियर। सो आई जस्ट क्रिएट द पोल ऑप्शन फॉर यू। देखो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि फंक्शन का, मैट्रिक्स का ऐसे पूछ सकता है आप सभी से, जिसको अभी थोड़ी बहुत चीज़ें अगर दिक्कत है तो किसी के ऊपर, मैं पहले ही बताता हूँ, हर आदमी की सोचने की एबिलिटी अलग है। मंजू अलग है, राजलक्ष्मी अलग है, अशोक अलग हैं, देवनाथ अलग हैं, पुरुषोत्तम अलग हैं। कोई जल्दी सॉल्व कर लेता तो कोई थोड़ा सा टाइम लगाएगा। हमें दूसरे का नहीं सोचना कि वो जल्दी से आंसर कर दे रहा, उन्हीं क्वेश्चन को हम अपने सोच के अपने मन से सॉल्व करो, घबराओ बिल्कुल भी नहीं, मैं हूँ आपके साथ खड़ा। आदर्शना, आदर्शना मोहनन, प्लीज़ रिस्पॉन्ड हियर। आप थोड़ा रिस्पॉन्ड करिए, यू जस्ट रिस्पॉन्ड हियर। कैन यू हियर मी, आपको आवाज़ आ रही मेरी? कोई बात नहीं। मंजू आपको कोई दिक्कत, आप अमित गुप्ता नाम से ज्वाइन किया है ना आपने? हाँ जी सर। ठीक है, कोई दिक्कत होगा कहीं भी आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। सर आप मेरा नेम चेंज कर लीजिए, मेरे हस्बैंड की आईडी है सर ये। तो आप खुद चेंज करेंगी, जब आप ज्वाइन करती हैं ना तो वहाँ नेम आता है, आप चेंज कर सकते हैं उसे, ठीक है ना। ओके सर, ओके सर। अर्चना जाधव, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको समझने में? नहीं सर। ठीक है, म्यूट कर लीजिए आप सभी, जिससे बात कर चुका सभी म्यूट कर। अशोक, अशोक कुमार बेहरा, नहीं नहीं सेठी की बात नहीं कर रहा, अशोक कुमार बेहरा। आपको कोई चीज़ दिक्कत तो नहीं है समझने में? अशोक कुमार बेहरा, आपको कोई चीज़ समझने में तो दिक्कत नहीं ना है? ठीक है, कहीं भी कोई दिक्कत आप पूछ लीजिए। अशोक कुमार सेट्टी, कहाँ रहते हो जी तुम? तो बहुत डांट, चलो कल तुम्हें मैं फ़ोन करता हूँ। तुम 5 दिन आते हो फिर गायब हो जाते हो अशोक।
वृद्धा श्रुति, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? आप नहीं सर। ठीक है, थोड़ी मेहनत से पढ़ो, घबराओ नहीं, पेशेंस के साथ रहो, ठीक है? घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से सॉल्व करो, सब सॉल्व होगा। वन बाय वन बैठो, टाइम दो, 4 घंटे 5 घंटे आप हायर मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? ठीक है दिलीप, सर। दिलीप कैसे हो? पढ़ाई बढ़िया से करो और हाँ सर, लग गया सर। ठीक ठीक। दांगर, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? डांगर कहाँ चले गए? हरि कृष्णन, हरि कृष्णा, इट इज ओके, एवरीथिंग इज ओके। हाँ यस सर, ओके सर, क्लियर। राजलक्ष्मी, इट इज क्लियर। Yes, sir. सो आई थिंक दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन। सभी को क्लियर है? सर 2 मिनट आप सभी वेट करेंगे, 2 मिनट, जस्ट वेट, आई जस्ट। सो आई थिंक दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन। कभी किसी कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ कौन सा ऑप्शन होगा और क्यों होगा। मेनी पीपल हैव गिवन ऑप्शन नंबर 3rd, राइट? मेनी पीपल हैव गिवन। सो वन बाय वन आई जस्ट आस्क टू एनीवन। अभिलाख, अभिलाख कहाँ चले गए? यस सर। आंसर दिए हो ना आप कि नहीं दिए अभी? नहीं दिया सर। क्यों नहीं दिया, वही मैं भी जानना चाह रहा हूँ। क्वेश्चन जो है कंफर्म नहीं हो पा रहा है। S2 तो क्लियर हो जाता है, उसमें जो है जीरो वेक्टर एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन S1 और S3। देखो पहली चीज देखो, जो भी सेट दिया है यहाँ पे 3 सेट दिया, पहले उसका देखो एलिमेंट कैसे क्रिएट हो रहा है। सो S1 का एलिमेंट किससे क्रिएट हो रहा है? फंक्शन है वो बेसिकली। तो बेसिकली वो फंक्शन f है, कह रहा उसकी जब लिमिट लोगे x टेंस टू 3 तो फंक्शन क्या हो जाएगा? 0 होगा। जो भी इस सेट में आएगा उसका जैसे ही x टेंस टू 3 करूंगा वो फंक्शन 0 हो जाएगा, यही कह रहा है। इसका मतलब इसका जो एलिमेंट है, जो वेक्टर क्रिएट हो रहा है, f फंक्शन से क्रिएट हो रहा है, राइट? सो पहले 0 वेक्टर तीनों में चेक करेंगे। देखो चाहे इफ़ यू टॉक अबाउट S1 S2 R3 तो f की जगह हम 0 पुट करते हैं। यहाँ भी पहले देखते हैं 0 फंक्शन बिलोंग कर रहा है g की जगह 0 और h की जगह 0। पहले देखेंगे 0 फंक्शन क्या, देखो मैंने आपको बताया ना 0 वेक्टर। 0 वेक्टर का मतलब अगर मैट्रिक्स का केस है, देखो कई चीज़ें आपको ध्यान से समझनी है कि 0 वेक्टर का मतलब क्या है। अगर मैट्रिक्स लेते हो तो इसका मतलब 0 मैट्रिक्स की बात कर रहा है। अगर 0 वेक्टर मीन्स व्हाट इन ए मैट्रिक्स केस इट इज 0 मैट्रिक्स। इफ़ यू आर टेकिंग पॉलिनोमियल p एन x कहते हो तो ये बेसिकली 0 पॉलिनोमियल होगा। अगर मैं कहता हूँ कि दिस इज 0 फंक्शन है तो इसका मतलब वो 0 फंक्शन है, राइट? फंक्शन हमें 0 लेनी है। तो अगर मैं f की जगह 0 रखूँ तो पहले वाले में देखो 0 फंक्शन का ऑलवेज जो होता है ना, ये 0 मैपिंग होती है। कोई भी फंक्शन अगर 0 है, राइट, फंक्शन इज 0 देन इट्स मैपिंग विल बी 0, ऑलवेज 0 होना चाहिए। तो ये पहला वाला तो ट्रू दिख रहा है। सेकंड में देखो 0 ऑफ x कह रहा है ये 1 होगा, ये इम्पॉसिबल है। अगर कोई फंक्शन 0 है तो उसकी जब आप उसका को डोमेन में ले जाओगे तो फंक्शन इटसेल्फ 0 होना चाहिए, राइट? इट्स क्लियर। और यहाँ कह रहा है 1 हो जाएगा, तो ये तुरंत पता चल गया S2 क्या है? रॉन्ग है। इट इज क्लियर, इट इज क्लियर टू एवरीवन। S2 कैन नॉट फॉर्म द वेक्टर y, क्योंकि 0 जैसे ही मैं g की जगह 0 लूंगा, 0 इंटू एक्स दिस विल बी मस्ट बी 0 एंड हियर इट इज गिवन 0 ऑफ x इज 1 विच इज 100% रॉन्ग। अच्छा थर्ड में देखो 0 ऑफ x, तो 0 ऑफ x तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा।
जीरो इंटू एक्स करोगे जीरो, ये तो एग्जिस्ट कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। तो अगर जहाँ जहाँ एस टू है उसको तुरंत कट करो, तो पहले में कह रहा ओनली एस टू, तो ये सेकेंड ऑप्शन चला गया, राइट। और देखो कह रहा ऑल द थ्री वेक्टर्स आर फॉर्म द वेक्टर स्पेस, ये भी रॉन्ग हो गया क्योंकि एस टू तो फॉर्म नहीं कर रहा। अब आ जाओ, ये तो कह रहा ओनली एस वन, और थर्ड में कह रहा है एस वन एंड एस थ्री बट नॉट एस टू, तो ओनली एस वन कह रहा है, तो आप एस थ्री को भी चेक कर सकते हो, राइट। अब आप कोई भी फंक्शन लेके देखो, जैसे जीरो वाला तो क्लियर है, अगर आप कोई भी दो फंक्शन देखो, एस वन ही लेके पहले चलो, देखो आप क्वेश्चन को याद करने की कोशिश न करो, डिफिनीशन को समझने की कोशिश करो कि अगर कोई भी एलिमेंट मैं वेक्टर स्पेस से उठाता हूँ, कोई भी एलिमेंट, अब हो सकता है ये सेट ऑफ फंक्शन दिया हो, सेट ऑफ पॉलिनोमियल दिया हो, क्या दिया है आपके क्वेश्चन में, कई बार पॉलिनोमियल को क्वेश्चन करके आया मैं आपको अभी दिखाऊंगा, और कई बार क्वेश्चन आपके मैट्रिक्स से भी रिलेटेड, इसको एस वन इक्वल टू मैट्रिक्स दे दिया, राइट। सो यू हैव टू केयरफुल बिफोर गोइंग, आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए कि इस वेक्टर स्पेस की डिफिनीशन क्या है, कितने स्टेप का टेस्ट है, हमें इन दोनों स्टेप को कैसे अप्लाई करना है, ये आपको समझने आना चाहिए। बात क्लियर है, बाकी सारी चीज़ें हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं। अब S1 कह रहा है, देखो S1 इज द सेट ऑफ फंक्शन सच दैट लिमिट x टेंस टू 3 f(x) बिकम 0, राइट। अच्छा, अब मैं इसमें से एक काम करता हूँ, जीरो वेक्टर तो पहला कंडीशन तो हमने देख लिया कि जीरो वेक्टर तो है, सेकंड वाला दो फंक्शन लेते हैं और उनका लीनियर कम्बिनेशन करते हैं। सो अगर मैं इफ f1 f2 आर एलिमेंट ऑफ दिस S1, इस सेट का मैं दो एलिमेंट लेता हूँ, और अगर इस सेट का दोनों एलिमेंट है तो ये कंडीशन को पहले सेटिस्फाई करेंगे, क्या, लिमिट x टेंस टू 3 f(1x) इज इक्वल टू 0, और लिमिट, क्योंकि मैंने पहले से ले लिया कि f1 f2 इसके एलिमेंट है, सो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई करेगा। अच्छा, वेक्टर स्पेस शो करने के लिए सेकंड कंडीशन क्या है, इन दोनों को मैं ऐड करूं और दिखाऊं कि इसी S1 में बिलोंग करेगा, राइट। अच्छा, मैं अगर इन दोनों को ऐड करता हूं तो हमें फिर एक काम करते हैं, फंक्शन x लेते हैं और इसकी लिमिट लेते हैं और देखते हैं क्या ये 0 होगा। अगर f1 f2 की लिमिट 0 आ गई, क्योंकि कोई भी अगर फंक्शन लेता हूं तो उसका लिमिट लेने पे 0 आना चाहिए, तो इसका जरा एक काम करते हैं, इसकी लिमिट लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 3 f1 प्लस f2 ऑफ x, और आप सभी जानते हो फंक्शन x लेंगे तो इसको ब्रेक भी करेंगे, लिमिट x टेंस टू 3 f1 ऑफ x एंड प्लस लिमिट x टेंस टू 3 f2 ऑफ x, राइट। एंड ये देखो पहले से 0 है ना, ये भी पहले से 0 और ये भी पहले से 0, इट इज ऑलरेडी गिवन 0 प्लस 0, दिस इज 0, दिस मीन्स दैट if we do the linear combination of two element of this set, any two element of this set, कोई भी दो एलिमेंट उठा लो, every S1 F1 F2 अगर उस लीनियर कम्बिनेशन कर रहे हो तो 0 आ रहा है, दिस मीन्स दैट S1 is what, वेक्टर स्पेस, राइट। इट इज क्लियर, प्लीज लेट मी नो। S1 तो हो गया, Yes, sir. अब S3 भी ऐसे ही चेक कर रहे हैं, ऐसे ही चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, S3 भी चेक कर सकते हैं। S3 को कैसे चेक कर सकते हैं, देखिए S3 में क्या कह रहा है, FGH लिया ना, H सच दैट लिमिट x टेंस टू 3 H ऑफ x एग्जिस्ट, यही कह रहा ना। अच्छा, एग्जिस्टेंस का मतलब समझ रहे हो, बस इनफाइनाइट ना हो एग्जिस्टेंस का। अच्छा, एक चीज़ और है, कोई भी एग्जिस्ट करे बस एग्जिस्ट होना चाहिए, एग्जिस्ट का मतलब अगर लेफ्ट और राइट लिमिट भी बराबर होनी चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखनी है। एग्जिस्टेंस का मतलब ये नहीं कि लेफ्ट लिमिट और कुछ और आ रहा है, राइट लिमिट कुछ और आ रहा है। सो नाउ सी, अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो मैं इस काम करता हूँ, H1 H2 दो फंक्शन लेता हूँ फ्रॉम दिस S3, राइट। इफ आई टेक टू फंक्शन, तो ये तो अगर इसका फंक्शन है तो दोनों एग्जिस्ट करेंगे, मीन्स लिमिट x टेंस टू 3 H1x, ये क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा, करेगा ना। और इसी तरीके से लिमिट x टेंस टू 3 H2x भी एग्जिस्ट करेगा, अरे हाँ ना बोलो, एग्जिस्ट करेगा, करेगा ना, क्योंकि पहले ही हमने दो एलिमेंट इसके लिए। अब इन दोनों को ऐड करते हैं, H1 प्लस H2, इन दोनों को ऐड करके देखते हैं और इसकी भी लिमिट लेके ऐड करने के बाद इफ वी टेक इट्स लिमिट x टेंस टू 3 H1 प्लस H2 ऑफ x, और क्या ये भी एग्जिस्ट करेगा, तो वो इसी तरीके से सेम हो जाएगा, ये भी ब्रेक करोगे,
h1x and plus limit x tends to 3 h2x and both limit will what exist, ये भी exist करेगा क्योंकि ये पहले से दिया है, देखो ये भी exist कर रहा है और ये भी exist कर रहा है, तो दोनों ऐड करने भी exist करेंगे, राइट. सो दिस इंडिकेट ऑप्शन नंबर दोनों S1 और S3 ये दोनों वेक्टर स्पेस फॉर्म करेंगे, सेकंड वेक्टर स्पेस फॉर्म नहीं करेगा. सो बेसिकली ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, क्योंकि पहले ऑप्शन में लिखा है ओनली S1, दिस इज रॉन्ग. S3 भी वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा. इट इज क्लियर? Yes, sir. सो देखो ऐसे प्रॉब्लम को हमें एक बार जब बेसिक लेवल पे प्रॉब्लम को समझेंगे तभी फिर एडवांस जो लेटेस्ट प्रॉब्लम आ रहा है उसको सॉल्व करने की एफर्ट लगा सकते हैं. इट इज क्लियर? किसी को और कोई दिक्कत तो नहीं है? देखो अभी तक जितना पढ़ा है, और ये पीडीएफ मैं शेयर करता हूँ, इन सारे क्वेश्चन को भी आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. नो सर, जो ऑप्शन में था तेज बोलो, उस तेज. क्वेश्चन में, उस क्वेश्चन में जो ऑप्शन में था थी, ऑप्शन ऑप्शन सी, सी बोलो. ऑप्शन ए सी ना, S3, इसमें S3 तो उस फंक्शन जो लिमिट एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है. मैं इसमें बोलता हूँ लिमिट एग्जिस्ट प्लस कंटीन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल. इसमें S3 फॉर्म वेक्टर स्पेस, एच वाले में क्या करो, एग्जिस्ट करे, कंटिन्यूअस हो, और जो S3 में है, जो फंक्शन S3 में है वो एग्जिस्ट करे, कंटीन्यूअस होए बट नॉट डिफरेंशिएबल, तो S3 वेक्टर स्पेस होगा. देखो एग्जिस्ट कर रहा है, कंटिन्यूअस है, ठीक है, तो इसका मतलब उस पॉइंट पे भी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है. आपका F3 प्लस या H और H ऑफ 3 माइनस और H ऑफ 3, ठीक है, ये हो रहा है, यही कह रहे हो ना. और डिफरेंशिएबल क्या हो, नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल हो, ठीक है. तो अगर कोई फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है तो क्या उसका लीनियर कम्बिनेशन करोगे दो अलग अलग फंक्शन का तो डिफरेंशिएबल हो जाएगा. कंटिन्यूटी तो मेंटेन रहेगी. अगर दो फंक्शन पहले से कंटिन्यूअस है तो ये तो कंटिन्यूटी की बेसिकली पहले से, अगर दो फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उनको ऐड करोगे तो भी वो कंटिन्यूअस होगा, राइट, फॉर द सेम रेंज. हेलो, नहीं मुझे बताओ ना, मैं जो पूछ रहा हूँ, अगर दो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो क्या दोनों को ऐड करने पे वो डिफरेंशिएबल हो जाएंगे? हेलो, कहाँ गए आप सभी? इनका क्वेश्चन समझ रहे हो क्या कह रहे हैं ये? हेलो, रेस्ट ऑफ द ये कह रहे हैं कि अगर आपका पास यही h है, x टेंस टू 3hx एग्जिस्ट कर रहा है और कंटिन्यूअस हो, अगर कोई फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है और कंटिन्यूअस है, इसका मतलब लेफ्ट और राइट लिमिट उसकी सेम है, ठीक है, और इसके अलावा कंटिन्यूअस है तो उस पॉइंट की वैल्यू भी सेम होगी, h3 की भी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. तो अगर मैं दो अलग अलग फंक्शन लेता हूँ और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, जैसे इसी पर्टिकुलर पॉइंट के, अब इन्होंने ये नहीं कहा कि अलग कोई पॉइंट, ये देखो ध्यान से, ध्यान देना कि अगर दो फंक्शन हमने लिया h1 और h2, राइट, और ये दोनों फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, एक एक चीज़ ध्यान से समझना, एग्जिस्ट कर रहा है प्लस कंटिन्यूअस है, और कंटिन्यूअस किस पॉइंट पे, x टेंस टू 3 पे ही बात की जा रही है, राइट, और प्लस थर्ड नॉट डिफरेंशिएबल, यही कह रहे हो ना हसन नूर? यस सर. सो देखो ये फंक्शन क्या है, लिमिट x टेंस टू 3 hx, राइट. अब देखो hx एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है तो ठीक है, लेफ्ट और राइट लिमिट, लेकिन कंटिन्यूटी की अगर बात किया और मैं दो अलग अलग फंक्शन लूँ h1x एंड h2x, राइट, दिस फंक्शन इज एग्जिस्ट एंड कंटिन्यूअस एट 3,
आप एक चीज़ और ध्यान रखना, थोड़ा सा इसको एक लाइन ड्रॉ करो, ठीक है ना। और दो अलग अलग फंक्शन लेता हूँ, H1 में कोई अलग फंक्शन लेता हूँ, H2 कोई अलग फंक्शन लेता हूँ, और इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस है, x इज इक्वल टू 3 पे, राइट हसनूर। H1 और H2 मैंने दो अलग अलग फंक्शन लिया, दोनों फंक्शन एग्जिस्ट कर रहे हैं, कंटिन्यूअस है। अगर दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस है तो दोनों को ऐड भी करोगे H1 प्लस H2 तो उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा, इसमें ये बट नहीं है, राइट। इट इज क्लियर, प्लीज लेट मी नो, होगा या नहीं होगा। अरे दो फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो उनको ऐड करोगे तो वो भी कंटिन्यूअस है। हाँ, अब बात यह है कि डिफरेंशियबिलिटी पे मामला थोड़ा सा फंसा है। अगर नॉट डिफरेंशिएबल है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे तो क्या ऐड करने पे वो डिफरेंशिएबल हो जाएगा, सवाल ये है। बात क्लियर है। तो ऐसा फंक्शन बताओ जो किसी पर्टिकुलर, अच्छा आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि आप एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहे हो या डिफरेंशिएबल किसकी बात कर रहे हो, क्योंकि ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। डिफरेंशिएबल पूरे इंटरवल की बात कर रहे हो, डिफरेंशिएबल इन द होल इंटरवल, आर यू आर टॉकिंग अबाउट ओनली दिस पॉइंट 3। देखो अगर किस कोई फंक्शन किसी एट ओनली 3 पे, तो ऐसा कोई फंक्शन बताओ जो इस पे डिफरेंशिएबल ना हो। मॉडुलस x माइनस 3। x माइनस 3, ठीक है, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, राइट। ये ले सकते हैं H1, ये कंटिन्यूअस है, एग्जिस्ट भी करेगा। H2 दूसरा फंक्शन बताओ जो डिफरेंशिएबल हो। इसी, अब देखो बात वही है ना हसन नूर कि आपने वही फंक्शन सेम ले लिया है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। हेलो, वही सेम, हमें पॉइंट वही लेना है तो हम फंक्शन भी नहीं चेंज कर सकते। बात समझ में आ रही है, चूंकि पॉइंट वही लेना है, जो दूसरा फंक्शन लोगे वो भी सेम ही फंक्शन लेना पड़ेगा। आप बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि x टेंस टू 3, उस 3 पॉइंट पे हम डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो अगर मैं ऐड भी करूँगा तो भी ये नॉट डिफरेंशिएबल होगा। बात क्लियर है। अगर इन दोनों को ऐड भी करें तो क्या होगा, दिस इज अगेन नॉट डिफरेंशिएबल, ये बट तो है ही नहीं है। इट इज़ क्लियर। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे जो केस होगा फिर भी ये आपका वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा। क्लियर। सर अगर इंटरवल देने से तो फिर देखो इंटरवल लेंगे ना, सुनो डिफरेंशिएबल होगा किसी किसी पॉइंट पे। सुनो, अगर आप इंटरवल लेते हो तो आपको ये पूरा क्वेश्चन ही चेंज करना पड़ेगा। पूछो क्यों, कोई मुझे बताओ। क्योंकि फिर लिमिट एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है, किस पॉइंट की बात कर रहे हो। मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बात कर रहे हो, एग्जिस्ट करे, फिर डिफरेंशियबिलिटी किसी और, अब अगर अलग पॉइंट लोगे तब ये ज़रूरी नहीं है, राइट। क्योंकि अगर अलग पॉइंट लेते हो तब हो सकता है ऐड करने पे वो डिफरेंशिएबल, या ऐसा भी हो सकता है ऐड करने पे कोई जीरो भी फंक्शन आ जाए। तो अलग पॉइंट पे लोगे तो मे भी पॉसिबल है कि वेक्टर स्पेस फॉर्म ना करे, राइट। क्यों हसन? अब ये डिपेंड करता ना क्वेश्चन क्या पूछ रहे हो। पहले अगर उस पॉइंट पे पूछ रहे हो तो पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट तो क्लियर है। अब उस क्वेश्चन को अलग तरीके से सोचना पड़ेगा, ठीक है कि इंटरवल। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तब तो जीरो आएगा ना। किसको? उस फंक्शन को 0 इनटू दिस फंक्शन इक्वल टू 0। तो 0 तो डिफरेंशियल फंक्शन है, तो इसमें तो कॉन्ट्रडिक्शन आया। हाँ ये भी कह सकते तो वेक्टर स्पेस फॉर्म नहीं करेगा। हाँ, अब हमने तो अभी सेकंड कंडीशन सिर्फ चेक किया, फर्स्ट कंडीशन तो चेक नहीं किया। क्योंकि अगर जीरो पॉलिनोमियल आ जाएगा तो हर जगह डिफरेंशिएबल है, राइट। आप बात समझ रहे हो। तो यही डिपेंड करता है ना कि हम हर कंडीशन को चेक कर रहे हैं कि नहीं चेक कर रहे हैं। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इट इज़ क्लियर, इट इज़ क्लियर। देखो अब जीरो कंडीशन तो हमने चेक नहीं किया, तो अगर जीरो फंक्शन लेते हैं तो हर जगह डिफरेंशिएबल होगा, राइट। यस सर। तो उस कंडीशन में तो ये फेल कर जाएगा, फिर ये वेक्टर स्पेस नहीं फॉर्म करेगा। बात क्लियर है। तो आपको बहुत केयरफुल रहना हर कंडीशन के लिए, ठीक है। ठीक है हसन नूर, क्लियर है ना अभी?
Yes, sir. Clear, sir.